स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। इसमें टॉपिक नंबर 1 इज मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, सिंपल लैंग्वेज, टोटल डिमांड, बट डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज the total value of final goods and services which all the sectors means all four sectors of an economy: household sector, producing sector, government sector and rest of the world sector. Planning to buy, it means ये जो भी demand है, this is all estimated demand, ex ante demand, planned demand at a given level of income during a period of one accounting year. हम word use कर रहे हैं period, तो it means this aggregate demand is a flow concept. It is not a stock concept, it's a flow concept. Okay, so aggregate demand is the total demand for all final goods and services in the entire economy, whereas it is different from market demand. So do not confuse aggregate demand with market demand. Okay, aggregate demand is the aggregate expenditure that different sectors of an economy are willing to spend during a given period. It means aggregate demand is equal to aggregate expenditure. Okay, topic number 2 is components of aggregate demand. The very first component is private, means household, consumption, expenditure. Okay, private means household, consumption, expenditure. The second component is investment, expenditure. Okay, and third component is government expenditure. Last component is net exports. हम एक एक component को अब डिटेल में स्टडी करना है. Now private या household consumption expenditure क्या होता है? This is basically the total expenditure. Okay, total expenditure जो कौन spend कर रहे हैं? Household spends कर रहे हैं, right? किस पर spend कर रहे हैं? On purchase of goods and services during an accounting year. And generally beta, consumption expenditure is always influenced by income, right? So जितना ज़्यादा इनकम होता है उतना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. जनरली यही बिहेवियर होता है, राइट? सो डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज which is available for households for spending on consumption and saving. Okay, the second component is investment expenditure. Again, it is the total expenditure, but now this total expenditure is incurred by all private firms on capital goods. Okay, on capital goods. Like for example, addition to the physical stock, say machinery, equipments, buildings, change in inventory, etc. Now government expenditure, total expenditure, once again same word है, देखो बिल्कुल common word repeat हो रहा है, total expenditure, but this is incurred by whom? Incurred by the government. Okay, government on two things: one, consumption expenditure of government, and two, investment expenditure of government. Now this is the very important part बच्चे. गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से हैं एंड गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन से हैं, ये पार्ट एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? लाइक वेन एवर गवर्नमेंट स्पेंड मनी टू मीट public needs, okay, money to spend public needs, जैसे law and order, mainly law and order, education, health services, ये सारे आपके गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग पुअर पीपल in getting vaccinations, या government is providing free medicines, government is providing free mask, government is providing school dresses to the poor children. ये सारे गवर्नमेंट के हेल्थ सर्विसेज एक्सपेंडिचर हैं, एजुकेशन सर्विसेज एक्सपेंडिचर हैं. बट इफ आई से कि गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग अ हाईवे, अ रोड, पावर प्लांट, सो जहाँ पर वर्ड आता है कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स एटसेट्रा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया. सो प्लीज रिमेंबर, एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर इज गवर्नमेंट consumption expenditure, okay. And the last component is net exports, which is export minus import, okay, which is export minus import. Now export is basically the demand for goods produced within the domestic territory of a country by rest of the world, and import refers to the demand of the residents of a country for the goods which have been produced abroad, okay. So the difference between X मतलब exports and M का मतलब है imports. So difference between export and imports is called net exports, okay. So these are 4 components of aggregate demand. तो जो first component है उसको आप डिनोट कर रहे हैं C से, जो सेकंड कंपोनेंट है उसे आप डिनोट कर रहे हैं I से. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज G एंड नेट एक्सपोर्ट्स इज NX, ओके. सो यहाँ तक आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए. बट मस्ट रिमेंबर, इफ आई टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, remember, if I say the aggregate demand in 2 sector economy, then aggregate demand is equal to C plus I. In 2 sector economy we assume it's only C plus I. Otherwise आप aggregate demand को, components को theory basis पर कैसे देते हैं? C plus I plus G plus net exports, which is X minus M. Okay, so even though aggregate demand has 4 components, but we will assume that there is a closed economy and AD is the function of only consumption expenditure and investment expenditure. Hence AD is C plus I. In fact, जब हम numericals करेंगे बाद में इस chapter के, तब भी आपने AD का फॉर्मूला assume क्या करना है? C plus I. AD is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. Understood? Now let us understand this concept with the help of a schedule, assumed table, right? For example, I am taking income, say Y, consumption as C, investment as I, okay, and last is AD, aggregate demand, that's C plus I. Assume income is rupees say 0, ठीक है. I am assuming income को 0, 100, 200, 300, 400, say 500. आप 0 से लेके 400 तक भी लिख सकते हैं, 500 तक भी लिख सकते हैं. कंजम्पशन 0 इनकम पर मैंने 40 शो करा. ये सब वैल्यूज़ आप अज्यूम कर रहे हैं. सिर्फ इजी करने के लिए मैं इसे 80 से इंक्रीज कर रही हूँ. 40 प्लस 80 120 प्लस 80 200 280 360 440.
आप कोई भी वैल्यू से इंक्रीज कर सकते हैं. दिस इज जस्ट कि हमें एग्जाम्स के लिए एक टेबल याद रहे माइंड में. ठीक है. इन्वेस्टमेंट मैंने अज्यूम करा 20. इकोनॉमिक्स में जिस इन्वेस्टमेंट को हम स्टडी करते हैं दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. मतलब द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल. अगर एक बार 20 है तो ये हमेशा 20 ही रहेगा. नाउ C plus I is 0 income per 60, then 140, then 220, then 300, 380 and 460, right? And 460. तो ये मैंने एग्रीगेट डिमांड की वैल्यूज लिखी. कैसे फाइंड किया? C plus I किया विच इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. अब इस टेबल से मैं आपको कुछ बिहेवियर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप देख सकते हैं बेटा 200 इनकम लेवल पर कंजम्पशन इज ऑल्सो 200. फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस. सेकेंड पॉइंट टू नोटिस कि जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन इज नॉट जीरो. करेक्ट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिहेवियर इज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम consumption can never be zero. There is always some minimum consumption. There is always some autonomous consumption. आप सोच के देखो बेटा, अगर आप काम करना छोड़ दें, आपकी इनकम लेवल जीरो है, क्या आप खाना खाना छोड़ देंगे? क्या आप पानी पीना छोड़ देंगे? या आप अपनी बेसिक नीड्स को छोड़ देंगे? तो कंजम्पशन तो कभी जीरो ही नहीं हो सकती, राइट? तो जीरो इनकम पर भी देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. सर्वाइवल नीड्स कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान. तो बेसिक नेसेसिटीज जो है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक एजुकेशन, ये नीड्स कभी जीरो नहीं होती. सो जीरो इनकम पर कंजम्पशन इज नॉट जीरो. तो ये कौन सी कंजम्पशन है? दिस कंजम्पशन इज कॉल्ड C bar. C bar मतलब this consumption is basically called बच्चे autonomous consumption. क्या कहते हैं इस consumption को? Autonomous consumption. Minimum level of consumption. This is called minimum level of consumption which is needed for survival. That is consumption at zero level of national income. Now the point is, मैम अगर ज़ीरो इनकम है तो हम कंज्यूम कहाँ से कर रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसके लिए 3 ऑप्शंस है मेरे पास. मैं अपनी पुरानी सेविंग्स खर्च करूँ, सो विड्रॉल्स फ्रॉम पास्ट सेविंग्स, डिस सेविंग्स कहते हैं जिसे आप, या फिर मैं अपने कोई एसेट सेल करूँ. सेल ऑफ एसेट, मे बी डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, कभी जैसे गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाता है टर्म. एंड थर्ड ऑप्शन मेरे पास है, मैं लोन ले लूँ, दैट इज बोरोविंग, राइट? आप अपने ऊपर रख कर देखिए, अगर आप ज़ीरो इनकम पे स्पेंड कर रहे हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? आपने किसी से लोन बोरो किया, या आपने कोई अपना एसेट बेचा, या आपने अपनी पुरानी सेविंग्स जो भी बैंक में थी या घर पर थी, राइट, आपने उन्हें यूज़ करा. सो हमने क्या बिहेवियर लर्न किया? नंबर 1 इस टेबल में, एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम consumption can never be zero. There is always some minimum level of consumption, autonomous consumption. और यही रीज़न है बच्चे, यही रीज़न है कि ज़ीरो इनकम पर एग्रीगेट डिमांड भी कभी ज़ीरो नहीं होता. इनफैक्ट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी आप देखिए, ज़ीरो इनकम पर ज़ीरो नहीं है. दिस इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच इज़ नीडेड for survival of the country, for growth of the economy, for avoiding stagnation in the economy, right? ये एक minimum level of investment है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी है, चाहे इकोनॉमी डेफिसिट है, सरप्लस है, राइट? ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट को सिग्निफाई करता है. नाउ सेकेंड थिंग आप नोटिस करिए, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, आप देख सकते हैं इनकम इंक्रीज हो रही है 0 से 100, 200, 300. आप देखिए बच्चे, कंजम्पशन इज ऑल्सो राइजिंग, राइट? इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस है, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो राइजिंग. इस पॉइंट पर देखेंगे तो इनकम इज लेस एंड कंजम्पशन इज मोर. तो मतलब कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम,
राइट. एंड यहाँ पर नोटिस करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 200 income and consumption is also 200. This is called break even point. Okay. So बच्चे, इस टेबल से हमने क्या क्या पॉइंट्स नोटिस करे? ज़ीरो इनकम पर कंजम्पशन इज नॉट ज़ीरो. अब आप ये पॉइंट नोटिस कर रहे हैं कि 200 इनकम लेवल पर कंजम्पशन इज ऑल्सो 200. ओके, 200 income level पर consumption is also 200. Income is equal to consumption. So जहाँ income और consumption equal होते हैं वहाँ पर आपका break even point होता है. So once again यही table say y is 0, 100, 200, 300, 400, 500. Then once again see कैसे learn किया. A quick recap. 0 income से 40 कंजम्पशन, 80 से आप इसको इंक्रीज करते गए. वैल्यूज लर्न हो गई सबको, वेरी गुड. इन्वेस्टमेंट 20, अगर एक बार 20 है तो दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, 20 रहेगा. देन एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, 60, 140, 220, 300, 380 एंड 460. तो हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या नोटिस किया कि एट इवन ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, राइट, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो. कौन सी कंजम्पशन होती है? देयर इज ऑलवेज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मिनिमम सर्वाइवल नीड. सेकेंड पॉइंट आपने नोटिस किया कि 200 इनकम लेवल पर कंजम्पशन इज ऑल्सो 200. इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन. ओके, थर्ड पॉइंट आप नोटिस करो बच्चे, कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजम्पशन, वो पॉइंट कवर है. बट आप ये भी नोटिस करो, एज इनकम इज राइजिंग कंजम्पशन इज ऑल्सो राइजिंग, right? So slope of consumption curve is always positive slope. However, proportionate increase in consumption is less than that of income. Because you know, एक point पर जाने के बाद हमें क्या लगता है कि अब तो हमारी सारी wants almost satisfy हैं, तो अब हम consumption के साथ साथ कुछ part of income को save करें. I'm not saying कि हम consumption को रोक देंगे. Income rises, consumption rises. But after a certain level, people start saving a part of their income, okay? And the starting point of aggregate demand or consumption curve will never be zero, because consumption is never zero, okay? So slope of AD curve is always positive, that as income increases, aggregate demand also increases, okay? Now, same concept we will study with the help of a diagram. अब अगर आपको इसका डायग्राम आता है, आप कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस. लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पूरे चैप्टर में इनकम ऑन एक्स एक्सिस, वाई इन रुपीज, ओके, वाई इन रुपीज, जो भी करोड़ हैं, लैक्स हैं, राइट. एग्रीगेट डिमांड मीन्स expenditure. Aggregate demand और aggregate expenditure is same. In rupees, करोड़ है तो करोड़ assume करिए, lakhs है तो lakhs लीजिए, correct? Now, डायग्राम कैसे बनाना है आपने? सबसे पहले मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया. इन्वेस्टमेंट भी आपने देखा था, मैंने ऑटोनॉमस दी थी. ऑटोनॉमस मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉट जीरो, right? It is parallel, straight line parallel to x-axis. It is independent of the level of income, okay? Then say this is the consumption curve. At zero income, consumption is not zero. अब बिल्कुल इसके parallel क्या बनेगा? Aggregate demand curve. इसमें ध्यान रखिए बच्चे, जो ये गैप है x-axis और investment curve में, exactly same gap होना चाहिए. अदरवाइज वो डायग्राम रॉन्ग माना जाएगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू शो दैट एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द डायग्राम
for aggregate demand. Okay, now next topic is aggregate supply. So the next topic is aggregate supply. So aggregate supply को अब हम start करते हैं. बच्चे aggregate supply is not market supply. ठीक है, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई को कंफ्यूज नहीं करना है. मार्केट सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में था. ठीक है, वो इंडिविजुअल कंसेप्ट है, एक वन यूनिट है. एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट all the producers, okay, all the producers are willing to supply. ठीक है, are willing to supply in a given period of time. अब period of time word आता है ना, तो वो चीज़ हमेशा कौन सा कंसेप्ट हो जाती है? फ्लो कंसेप्ट हो जाती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, aggregate supply is also called planned output, planned production, okay, or desired output. ये सब आपके किसके alternate names हैं? aggregate supply के. आप इसे planned production भी कहते हैं, planned output भी कहते हैं, desired output भी कहते हैं. Okay, so it does not refer to the actual output. ये सब चीज़ें आपको लग रहा होगा मैम शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है. बेटा assertion रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस में यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं. आप इस पूरे चैप्टर में एक बात याद कर लो, बी इट एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, ये हमेशा प्लान्ड होता है. इट इज़ नेवर एक्चुअल. एक्चुअल वर्ड नहीं आता. ठीक है, सो एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड प्लान्ड प्रोडक्शन, प्लान्ड आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट. आई होप फर्स्ट पॉइंटर बिल्कुल क्लियर है एग्रीगेट सप्लाई का. अब बात आती है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. जैसे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे एग्रीगेट सप्लाई के होते हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं, ओके, एग्रीगेट सप्लाई मतलब AS is equal to C plus S. C stands for consumption, S stands for savings. Okay, C stands for consumption and S stands for savings. So aggregate supply is equal to consumption plus savings. Okay, अब बच्चे इसमें एक पॉइंट और है. aggregate supply is always equal to national income. किसके इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई? नेशनल इनकम, मतलब वाई के. सिर्फ फर्क क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है तो मतलब आप उसे फिजिकल टर्म्स में लिख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट, प्रोडक्शन, फिजिकल टर्म्स हुई. और जब आप उस चीज़ को नेशनल इनकम कर देते हो तो मतलब आपका जो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, आपने वो कैसे प्रोड्यूस करा? बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट. आपने उन फैक्टर सर्विसेज पर रिटर्न दी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट. सो द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स at domestic and national level is national income. So we can say that aggregate supply and national income both are same thing. कई बार तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, why AS is equal to national income. तो सिंपल सी बात है, एग्रीगेट सप्लाई किस टर्म्स में है? फिजिकल टर्म्स में है. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई किन टर्म्स में है? फिजिकल टर्म्स में. बट व्हेन यू टॉक अबाउट नेशनल इनकम तो भाई ये आउटपुट प्रोड्यूस कैसे हुआ? बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज. उन फैक्टर सर्विसेज पर क्या जनरेट हुई? फैक्टर इनकम. सो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एट डोमेस्टिक और नेशनल इनकम इज नेशनल इनकम. सो वी आर कंक्लूडिंग दैट AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम. तो फॉर्मूला में भी
AS is equal to Y is equal to consumption plus saving. So मैं conclusion निकाल रही हूँ, AS is equal to Y is equal to C plus S. Okay, AS is equal to Y is equal to C plus S. Understood? Now we can support this answer with the help of schedule and diagram. सबसे इजी पार्ट है, आप हमेशा एक कॉमन स्केड्यूल लर्न करें, कॉमन वैल्यूज़ को लर्न करें, रादर देन आप हर टेबल में अलग वैल्यूज़ दो. जैसे मैंने प्रीवियस में आपके साथ जो इनकम था वो कितना अज्यूम किया था प्रीवियस टेबल में, 0 से लेकर 400 500 तक मैंने सेम वैल्यूज़ ले ली. मैंने आपके साथ कंजम्पशन अज्यूम करा था, ज़ीरो इनकम पर मैम 40 है, एंड देन मैंने उसको 80 से इंक्रीज़ किया. राइट बेटे? सो मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया. बस अब इन्वेस्टमेंट के प्लेस पर आई एम टेकिंग एस, सेविंग्स. और सेविंग्स क्या होगा? इनकम माइनस कंजम्पशन, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल बेटा. द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग्स. सो 0 माइनस 40 माइनस 40. तभी तो मैंने कहा था कि अगर ज़ीरो इनकम पर कंजम्पशन है तो आप वो पैसे कहाँ से खर्च कर रहे हैं? पुरानी सेविंग्स से. ओके, सो इट्स माइनस 40. अगर इनकम 100 है, स्टिल योर कंजम्पशन इज मोर, राइट? तो इट्स माइनस 20. 200 इज इक्वल टू 200 मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. अगर याद हो तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. और मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स क्या होती हैं? ज़ीरो. तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपके पास दो डेफिनेशन हो गई. पहला पॉइंट y इज इक्वल टू c एंड दूसरा पॉइंट s इज इक्वल टू 0. राइट? नाउ 300 माइनस 280 20 40 60. अब वंस अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, बियॉन्ड ब्रेक इवन सेविंग्स आर पॉजिटिव. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी सेविंग्स आप देखो पॉजिटिव है, बट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी सेविंग्स क्या है? नेगेटिव. और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स क्या है? पॉजिटिव. तो अगर मैं आपसे स्टेटमेंट पूछती हूँ बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स आर नेगेटिव, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद सेविंग्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं. ओके, एंड एग्रीगेट सप्लाई अगर फाइंड करना है, या तो आप C प्लस S करो, वरना मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँगी प्लस करने में? AS इज ऑलवेज इक्वल टू Y. तो जो वैल्यू Y की है वही वैल्यू आपने कॉपी करनी है, सेम वैल्यू आएगी. 0 से लेके 500 तक कॉपी कर देंगे. डन. बस अब आपने इसका डायग्राम करना है. वेरी वेरी सिंपल डायग्राम, कुछ भी नहीं है इस डायग्राम में. सिंपल एक्स एक्सिस पर इनकम ले लीजिए, वाई एक्सिस पर AS. AS मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग्स. ओके, ज़ीरो इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो ज़ीरो. सो द कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके, इसे AS भी कहते हैं या Y भी कहते हैं. इट मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये एंगल बहुत फेमस है मैक्रो में, 45 डिग्री इस चैप्टर में. इनफैक्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री एंगल या 45 डिग्री लाइन का सिग्निफिकेंस ही क्या है? सो सिग्निफिकेंस ये है कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड by adding consumption and saving curve. तो अगर यहाँ पर कंजम्पशन 0 पर 40 है तो उतनी सेविंग्स नेगेटिव है, तो इफेक्ट क्या हो गया? 0 ही तो हो गया. दैट इज वाई कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. क्लियर बेटा? सो दैट्स ऑल अबाउट एग्रीगेट सप्लाई. आई होप यहाँ तक क्लियर है. राइट? सो केन्शियन इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग 45 degree line has a slope of 1 and it bisects the 90 degree angle formed by two axes. Okay, so that's all about the very basic of the chapter.
aggregate demand and aggregate supply.